was from a particular community और मुझे उस community से भाई दिल्ली से कॉल आ रहा है. I was not picking up my phone. रैंडम नंबर से दिल्ली से मुझे 6-7 कॉल आ रहे हैं कि जल्दी फोन उठाओ ये वो. I was ignoring that. Is there? भाई तो भाई मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ. बैरिकेडिंग में अंदर आया. I told आर्यन भैया पास दे everyone. They were like बैरिकेड के बाहर से बैरिकेड के अंदर आना, इनफैक्ट स्टेज तक आना. Even council can make a, I think council can make a documentary barricading से बाहर barricading से अंदर तक का सफर. We'll approach city को. So, hello guys, this is Himanshu Mishra, the club head creative team GSET. So this is the season 1 episode 1 of the CT Talks, which is the podcast series which we are doing in our college. We'll be having guests from outside the college, alumni and many other. And today in our first episode we have the core council of this year, and we'll be having many interesting talks regarding UniFest, freshers and whatnot. So stay tuned, let's get going. Hello bhaiyas and didis. Didi. So I am sure everyone knows you, all of you, क्योंकि आप ही लोग रहते हो हर फेस्टिवल हॉल में. But still for the audience, I would like you all to introduce yourselves. Akshita ma'am. So hi everyone. Hello. I'm Akshita Awasthi, the Chief Secretary for this tenure, since you guys do not know me. Hello everyone, my name is Otis Saran and I'm serving as the General Secretary for this tenure. Hello friends, hello guys, I am Subrat Tripathi, I am the Regional Secretary for this tenure. Hello everyone, I am Arpit Rathi, Joint Secretary for this tenure. Hello everyone, myself Rishabh Jaiswal, the Deputy General Secretary for this tenure of the Student Council. Okay, so I have many questions to ask. So before starting this podcast, I would like to tell you, creative team had done podcasts before in 2019 when Danish sir was there. I'm sure you all know him. So this is so this is our this is our second season. No, it's not second season. This is like second time we are doing podcast, and this is season 1 of that part, and you all are the first guests. So how you feeling to be the first guest of creative team talks? Feeling very honored. RJ bhaiya, especially you. No comments on that. So firstly, Ojas bhaiya, tell me one thing for the first years and the freshers and the people who don't know how the working structure of the council is. What is council? What is student council basically, and how does it function? Okay, so just to be very clear, Student Council acts as a platform which every student dreams of before entering in their college life. You will be a part of all the various activities which are being conducted inside the campus, be it technical, cultural, or any other form of the activity. You will be a part of academics as well. You will be representing the college on interstate and interstate regional levels and even across pan India as and when the opportunities arises. So according to me and as per my experience, I would like to motivate and encourage the first years who are joining with us right now. Just go on and explore yourself as much as you can with the help of council. We all are approachable. You can approach directly the board members or your respective club heads. There is no such barrier between our communication, and the council will definitely help you to enhance your personality. Okay, so what is the structure like? What is the power distribution in the student council? Okay, so the basic layout of the student council goes as, first of all, you will be joining the council as a member, be it in your first year or in the second year. And after completing 1 year under any particular club, you are eligible to be elected as the club head. Majorly, club heads are elected in the third year, but for some clubs like Enthran and Loop, there is the fourth year criteria. And once you have been successfully appointed as the club head, you are eligible after 1 year of completion of your tenure as club head. You are eligible to join the core. The core is decided by the ex-core committee and finally approved by the chairman, that is Dhruv sir. Okay, so my second question to RJ sir. So creative team दोबारा पॉडकास्ट कर रही है, आपको कैसा लग रहा है?
यार देखो, प्लान मैंने भी किया था, बट इवेंट्स बहुत लाइंड अप हो गए थे। यूनिफेस्ट आया लास्ट ईयर के टेन्योर में, यूनिफेस्ट, टेडेक्स, रंगरेज, वी हैड रंगदारी, ओरिएंटेशन। तो उस टाइम स्पैन में टाइम मिला नहीं, उस टाइम स्पैन में हमें इतना मतलब वो है, हाँ, टाइम नहीं मिला कि पॉडकास्ट शूट कर सके। ऑल्सो वी हैड अप्रोच, आई गेस तुम्हें भी पता ही होगा, हाँ। किसको अप्रोच किया था, ट्राई किया था, सिस्टम भी सेटअप किया था, क्या क्या, बट वी कुडंट। बट इट्स ग्लैड कि तुम कर रहे हो, मतलब द सिटी इज वर्किंग एंड इट्स गुड यार। बुलाओ अच्छे अच्छे गेस्ट। आई एम वेरी ऑनर्ड, लाइक ओजस भैया एंड आप सब लोग जानते हो कि मैं ये पॉडकास्ट बहुत टाइम से करने की सोच रहा था, एंड सो दिस इज नाउ हैपनिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। सो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि एज अ ओवरऑल पर्सनैलिटी, हाउ ऑल दिस को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप यू, लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैंने चिल्ड्रन, मैंने फ्रेशर एंटर कॉलेज, वो 12th में होते हैं, उन्होंने स्कूल में कुछ करा होता है, नहीं करा होता है, बट यहाँ से आके क्या एक्सपोजर मिलता है? इफ आई सी माई सेल्फ, हम फर्स्ट ईयर में जब आए थे मुझे कुछ नहीं आता था, साफ सीधी बात। क्लब ऑडिशंस, दोस्तों ने भरा फॉर्म, हाँ लेट्स गो टू क्लब, ये होगा वो होगा, इवेंट्स होंगे, मजा आएगा, आर्टिस्ट आएंगे तो मिला जाएगा, एक काम करोगे तो सिर्फ मैंने लेकिन एक क्लब ऑडिशन देना था, क्लब ऑडिशन दिया था, वो था क्रिएटिव टीम। फिर क्रिएटिव टीम में सीनियर्स के साथ वर्क किया, सीखा, लर्न किया, और आज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वो जब तुम वर्क करोगे खुद से, जब एक बंदा खुद पर्सनल डेवलपमेंट करेगा, वो ग्रोथ फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तुम्हें खुद क्लियर दिखेगा। एंड सीनियर्स हेल्प यू इन दैट। सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, बस तुम्हें हेल्प चाहिए कि नहीं वो डिपेंड करता है। सीखने वाला बंदा हो तो सीखने वाला बंदा हो तो सीखेगा। और this line is a very true line. If you need help, तभी help कर पाएंगे। हाँ, तो फ्रेशर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हो, सीनियर्स उसमें आपको गाइड कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू अक्षिता मैम। सो फ्रेशर्स, आई एम श्योर, मतलब फ्रेशर्स को मैंने देखा बहुत एक्साइटेड है, मतलब आप फ्रेशर्स में बहुत फेमस हो। आई डोंट नो द रीज़न, बट फ्रेशर्स अडोर यू सो मच, पता नहीं क्यों इस बार का स्पेशली, एंड देयर आर मैनी रीजंस, एंड मैं भी बहुत अडोर करता हूँ, बट आप बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो, गर्ल, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो और आई वंस रिमेंबर कि हम लोग कैंटीन में बैठे हुए थे, एंड कोई फ्रेशर्स आया था, एंड शी आस्क्ड कि ये कॉलेज कैसा है, एंड यू टोल्ड हर वन लाइन कि कॉलेज तो वैसे बहुत ऐसे बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बट आई हैव फाउंड वेज टू मेक इट एक्साइटिंग। सो कैसा, क्या वेज थे वो, और स्टूडेंट काउंसिल का उसमें कितना रोल था? I think अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ आज, it is because of student council only, because you get to explore those areas of college जो एक general student class में explore नहीं करेगा. We get that outside world to you, because कोई भी अगर आ रहा है तो वो normal classes कर रहा है, curriculum is very outdated, you know that. So it is not even teaching you the basic qualities of leadership, teamwork, that you get to know when you know other people. That is when you get to know कि उनमें क्या ऐसी qualities है जो हम में कम है. So with teamwork while organizing events, that is when you get to know different personalities and get the best out of them. And जो line मैंने बोली थी college उतना exciting नहीं है. It is different for different people because सबके interest different है. For some people studying is the only thing they are here for, so उनको maybe वो अच्छा लग रहा है. But coming to student council and how it helps is that जो events में आप within the barricade होते हो, that experience is different from the people जो crowd में है, and that is what we bring to you. So those memories, those bonds, they are not only just वो मतलब informal friendship बन गई मान लीजिए, they are also those bonds जो आपको आगे help भी कर सकते हैं because they are your seniors. तो academically, non-academically, student council helps. ये बैरिकेडिंग वाली बात काफ़ी फ्रेशर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग है, एंड काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है टू ज्वाइन क्लब्स एंड हाँ फिर भैया आप ईसी डिपार्टमेंट से, सबसे पहले चीज़ मुझे अपने डिपार्टमेंट के लोगों की, मतलब मैं उनको देखता हूँ ऐसे पोजीशंस पे जो कॉलेज में टॉप पोजीशन है, तो डिफरेंट मतलब ये एक नैरेटिव बना हुआ है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर्स एंड सेकेंड ईयर सब में। हम आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा, हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि ईसी डिपार्टमेंट इज़ काइंड टफर एंड स्ट्रिक्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, एंड उसके बाद भी आपने को करिकुलर एंड अपना एकेडमिक्स मैनेज करके आप वहाँ तक पहुँचे, तो कैसे किया ये चीज़? इनसाइडर्स। देखो यार, सिंपल सी बात है, अब कॉलेज आए हो, एकेडमिक्स तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना। हाँ। और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। हमारा तो डिपार्टमेंट शुरू से बदनाम है। हमारे एचओडी सर काफी अच्छे हैं, देखो यार मैनेज हो जाता है। सिंपल सा है, तुम क्लास करो, हाफ डे क्लास कर लो, हाफ डे में अपना एक्टिविटी करो।
लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे दिन तुम्हें इवेंट में रहना पड़ता है और एक बात बोली जाती है कि तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी, हाँ तो मिल जाती है। एग्जांपल ये ले सकते हो Attendance मिल जाएगी। कि इस बार के अटेंडेंस मिल जाएगी। हाँ। इस बार के ज्यादा क्लब हेड्स ईसी के हैं और वो अटेंडेंस ढूंढ रहे हैं हमसे। Attendance। अटेंडेंस मिल मैं जाएगी। मैं बहुत पीड़ित हूँ गाइस, मैं भी अटेंडेंस ढूंढता रहता ये हूँ। यहाँ पे क्लास छोड़ के बैठा है। मैं भी क्लास छोड़ के बैठा हूँ। फाइनल ईयर में भी क्लास हम होती सब है क्लास हमारी। छोड़ के बैठे हैं। फाइनल ईयर में क्लास होती है हमारी, इसी डिपार्टमेंट को करनी भी पड़ती करनी है, पड़ती है। तुम्हें पता होगा। तो हो जाता है मैनेज यार, थोड़ा सा ये देखो कि तुम क्लास जा रहे हो तो क्लास में तुम क्या सीख रहे हो, सिर्फ एकेडमिक्स सीख रहे हो ना, और वो भी तुम्हें पता नहीं सीख रहे हो। हाँ तो नहीं सीख रहे। देखो क्लब्स ज्वाइन करो। मैं तो पीआर से था, तो फर्स्ट ईयर से हर जगह थोड़ा थोड़ा मुंह मारा है मैंने हर क्लब में, तो इन दी एंड थोड़ा सा नॉलेज रहा कि किधर जाना है, और पीआर एक अच्छा प्लेटफॉर्म था आगे बढ़ने के लिए। शुरू से इंटरेस्ट था तो मैंने उधर थोड़ा ध्यान दिया। और काउंसिल का क्या है, आज यहाँ पे बैठा हूँ तो डिपार्टमेंट को तो देख ही लिया होगा। अब डिपार्टमेंट मुझे किस तरह से देख रहा है वो रिजल्ट्स में है, तो उस पर बात नहीं करते हैं। हाँ बट ओवरऑल मेरा तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ईसी डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है, बट कहीं ना कहीं इट इज़ बिकॉज ऑफ आर स्टडीज़, लाइक हमारी जो स्टडीज़ है, मैं बाकी ब्रांचेस को कुछ बोलूँगा नहीं या मैं नहीं बोलना चाहता, बट हमारी स्टडीज़ कंपैरेटिवली आर टफर आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ बट नहीं, ये लगता बात ठीक है। देखो टफ सब कुछ होता है। है। अगर तुम एकेडमिक्स वाइज देख रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सब टफ है। लेकिन देखो कुछ ना माइंड में ऐसे थॉट्स होते हैं कि तुम्हें करना है काम, और स्टडीज बचपन में छोटे थे तभी बोला था बेटा पढ़ोगे तभी कुछ बन पाओगे, और कॉलेज में आके तुम्हें बताया जाता है कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और बीटेक में तो यही होता है, प्लेसमेंट तो लगी जानी है। प्लेसमेंट तो हो ही जानी है, कॉलेज वाले कहीं ना कहीं करवा ही देंगे। सब्जेक्ट्स होते हैं देखो टफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं कहूंगा कि इसी बहुत इजी है, ऑब्वियसली टफ है, बाकी ब्रांचेस भी टफ होती हैं, लेकिन अपने अपने ऊपर है यार तुम कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। तो ओवरऑल इट्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो इंडिविजुअल के ऊपर है, सब कुछ इंडिविजुअल individual। के ऊपर है तो कैसे कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का इंट्रो लेके एंड आप लोगों से बातचीत करके हम इतना कंफर्टेबल हो गए, एंड नाउ आई लाइक टू मूव ऑन टू आवर बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, फ्रेशर्स, जो हम करवा चुके हैं, एंड अनदर बिगेस्ट इवेंट टिल डेट, हाँ जो वही तो जो हम करवा चुके हैं टिल डेट। तो फ्रेशर्स 2022 was a big success. So Ojas bhai, I would like to ask you, why was Krishna selected as an, and many people had the doubt कि हम आर्टिस्ट को अप्रोच कैसे करते हैं, so what is the procedure of selecting the artists and why Krishna? एक मिनट, मेरिट ऑडिशन से याद है? इनसाइड टॉक्स। Inside talks. डेफिनेटली। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो फ्रेशर्स इज द ओपनिंग इवेंट किसी भी टेन्योर का, व्हिच गिव्स द मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द फ्रेशर्स कि हाउ इज द फंक्शनिंग गोइंग टू हैपन इन दिस कॉलेज इन दिस टेन्योर। अब उसी टाइम पे अगर जो फ्रेशली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों को इतना आइडिया लग जाता है कि किस स्केल पे इस टाइम पे कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है टू एवरीवन, टू एवरी एस्पेक्ट, बी इट द ब्रांड वैल्यू ऑफ दिस कॉलेज, टू द फ्रेशर्स, टू द मोरल बूस्ट दे आर गेटिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ को एक बहुत स्केल अप साइज में दिखा दिया जाता है। So that was our point behind inviting Krishna in the freshers, क्योंकि if you look at the track record of Galgodias, जो previous celebrities आए थे, they were all famous celebrities, no doubt. But GCET में अभी तक कोई ऐसा celebrity नहीं आया था which had its roots connected to the local side of Delhi. If you are going to ask anyone who's from Delhi, he is going to know Krishna. Krishna बहुत पुराना name है. And the motive behind hitting Krishna was to hit Kalamkar. Okay, Kalamkar, because Krishna के लिए नहीं आए थे, Krishna के साथ में कर्मा आए थे। कर्मा अब तो नहीं है इस टाइम पे कलमकार है, but at that time उस इवेंट के टाइम पे कर्मा थे, और फिर साथ साथ रफ्तार came to Geo. So that was our motive to hit at the spot where crowd loves it the most. अभी हम लोग कोई एक ऐसे कम्युनिटी वहाँ पे लाके खड़ी करते हैं स्टेज पे who is not able to connect with the crowd, pointless. Yes. We are going to spend a lot of money, we are going to spend in a lot of efforts, but कोई वहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो ये सारी बातें aside, मैं obviously कृष्णा के 0.1% में आता हूँ 2022 रैप में, that is my biggest flex in terms of DHH,
डेफिनेटली तो मेरा से वहाँ पे रहता है, काफी ज्यादा रहता क्या है, ये but कोइंसिडेंस था या नहीं, it was definitely It was definitely planned. प्लान? Kind of. with the help of Dhruv sir, actually, because Dhruv sir also Likes him too. likes DHS side as well. Hmm. Okay, he personally follows Krishna on Instagram as well, so they two are connected as well. ये पॉइंट अब कैसे आता है कि हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं आर्टिस्ट को अप्रोच करने के लिए, दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल contact their manager, because we are not into artist management in agencies. We do not consider them, so we have to directly contact the managers of these artists. For example, Krishna, we directly went on to Kalamkar, we get a quotation from their side, we have to first of all tell them our deliverables कि मतलब हम लोग भाई कितनी क्राउड आपको दे पाएंगे, कोई आर्टिस्ट भी आपके पास में कब आएगा, when you are serving their brand as well, it is a connection of two brands basically. तो हम लोग यहाँ पे यही चीज करते हैं, we are going to tell them our deliverables, okay, the crowd, the timings on the dates, उनकी availability, सारी चीजें एक बार align करके final quotation मंगवाते हैं, then we sit together and then we finally proceed it to Dhruv sir, and then Dhruv sir gives his final word. That is how you approach a particular artist. Go to the manager, don't go to those agencies, क्योंकि हर बार ये होता है यार बहुत ज़्यादा pointless हो जाता है, लूप में आप फंसे रह जाओगे, आपका बजट भी बढ़ जाएगा, वो काफी सारी चीजें होती हैं. Okay, so Freshers was again I'm saying this was a very big hit, and before Freshers I was also not a very big fan. I would not say fan, but I had listened to him. But क्या होता है, एक तुम उसको बहुत अच्छे से सुनते हो, तो वो चीज़ नहीं हुई थी. But after Freshers I am his fan also. To add on to your point, ये काफी लोगों को ये चीज थी कि मतलब कृष्णा wasn't a very well known name. Again मैंने यही बात बोली कि it is about the crowd connect कर रही थी. There was that local touch of the Delhi NCR region in the Krishna's songs. तो वहाँ पे crowd connect कर रही थी, लोग नहीं जानते थे कृष्णा को उसके पहले, that was another thing. But after the concert, many of us are now his Following followers. Yes, we are definitely following him. तो वो चीज एक मिलती है हर चीज, कोई भी तुम आर्टिस्ट लाओ. That was with Hardy Sandhu as well. Everyone was excited, was hyped up. Hardy आए, उन्होंने perform किया, and after that everyone started following him as well. So Like that is the यहाँ का crowd, अगर हम for example अगर हम शॉन मेंडिस एंड पैराडॉक्स को कंपेयर करें, पैराडॉक्स यहाँ का crowd, paradox definitely. हाँ, he will get more crowd, and that event would be a blast. क्योंकि कोई भी कॉलेज कॉन्सर्ट या कोई भी इन माय ओपिनियन शो कराने का पॉइंट ये नहीं होता कि आप कितना बड़ा फेस ले आए, आपने कितने फेसेस को कनेक्ट किया उस फेस से, Oh. ये पॉइंट होता है. That was very What good. was the number of crowd? What was the number of people? हाँ. You were At the enjoying event? actually. That enjoyed actually. So okay, so RJ sir and Arpit sir, आप लोगों का freshers behind the scenes कैसा था, मतलब काम Freshers behind the scenes. Freshers 2022 ऑर्गेनाइज, कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में, आई थिंक वी हैड ऑलमोस्ट 5,000-6,000 क्राउड. एंड जस्ट ये भी इसलिए था क्योंकि वी वर ओनली लिमिटेड टू कॉलेज स्टूडेंट्स, हमने अलाउ नहीं किया बाहर के लोगों की, वाज ऑब्वियसली फ्रेशर्स, तो कॉलेज का ही Biggest it was more than 20,000. दैट विल टॉक अबाउट लेटर. तो बिहाइंड द सीन्स काम कैसा होता है, एंड क्या इस बार का कैसा था? यार देखो, स्ट्रगल तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा. बहुत. struggle होता है. मुझसे पूछो भाई, मेरे से पूछो. एक कॉल आया नहीं, लगता है कि क्या किया, एक स्टेज लगवा दी है, आर्टिस्ट आ गया, नाच के चले नाच गए. के, अरे क्या है, तो है स्टेज लगवाना है, स्टेज लगवाना अरे है. आर्टिस्ट को कॉल करना है, अरे ये है वो है. लेकिन एक Be approach there, जैसे कि then you know the pain. एक अप्रोच जो होती है, जैसा कि अभी ओजस ने बताया, इजी नहीं होती है. तुम किसी को कांटेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे पास क्यों आए, सिंपल सी चीज है ना. जैसा कि उसने बताया कि तुम्हारे पास एक क्राउड होना चाहिए, तुम उसे दिखाओगे तो ही वो आएगा. अब हम लोगों को भी ये देखना था कि इतना क्राउड हम जहाँ करवा रहे हैं वहाँ पे वो मैनेज होगा कि नहीं होगा. उसके लिए टीम बनी, और ये सब बैक ऑफ द स्टेज ही होता है. हाँ. किसी को नहीं पता Even होता. कुछ क्लब हेड्स, you were also there, we were also there, स्टेज लगवा रहे थे, स्टेज लगवा रहे थे रात में. रात में स्टेज लगा रहे थे. अगले दिन फ्रेशर्स कैसे मैनेज हो रहा है, क्या क्लब हेड्स कहाँ होंगे, क्लब हेड्स का रोल क्या होगा, कोर का रोल क्या होगा, आर्टिस्ट कौन देखेगा, आर्टिस्ट का टाइमिंग, वेन्यू, ये वो सब. तो ये लोगों को लगता है बस अरे स्टेज लगा, आर्टिस्ट आया, परफॉर्म करके चला गया, इट वाज फ्रेशर्स. बट बैक साइड जब बहुत काम. आप वर्क कर रहे होते हो ना क्लब के साथ, टीम के साथ, या अपने कोर मेंबर्स के साथ, तो तुम्हें पता चलता है या बच्चों को पता चलता है कि एक्चुअल में ये इवेंट एक दिन का इवेंट नहीं है, ये अराउंड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले के प्रिपरेशन का इवेंट है. Especially we are running short on time as well. हम लोग अगर एक वाली विंडो मिस होती है दिसंबर वाली, हाँ. हमने प्लान तो पहले अक्टूबर में किया, अक्टूबर फिर में उसके किया बाद था. बट फ्रेशर्स अराइव्ड आफ्टर दिवाली दिवाली. था,
नवंबर गया, दिसंबर वाली विंडो अगर मिस होती तो अभी हो रहा था बट ओवरऑल मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि इट वाज अ हेल लॉट ऑफ वर्क, स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था और बहुत सारा काम था मेरे लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं उनका मेजर काम रहता है हाँ। टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट देखना ही है, इवेंट है और फ्रेशर्स इवेंट है। मैनेजमेंट के बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेंबर्स थर्ड ईयर क्लब हेड्स इवन अस मैनेजमेंट देखना होता है। फिर क्रिएटिव टीम जब तक पोस्टर्स नहीं करेगा, वीडियोस नहीं करेगा, प्रमोशन नहीं होगी इवेंट की, तो वो प्रमोशन कैसे होगी? थ्रू पोस्टर, थ्रू वीडियोस। ये क्लब मार्केटिंग एंड ऑनलाइन प्रमोशंस करेगा, इवेंट की मार्केटिंग करेगा, तब ना बच्चे आएंगे आपके फ्रेशर्स में। हाँ, यू कैन से कि फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब उनका मेजर इवेंट है, फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर के आएंगे, बट द मार्केटिंग ऑफ द आर्टिस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, जिनको जो कह रहे थे कि कृष्णा इतना पॉपुलर नहीं है, बट मार्केटिंग टीम डिड देयर वर्क, और कृष्णा के आर्टिस्ट में भी अपने पास 5000 की क्राउड थी, 5000 प्लस की क्राउड थी, सो दैट वाज द मार्केटिंग टीम। इजीली 5000, और अगर हमने बंद नहीं करा होता बाहर के लोगों के लिए देन टॉकिंग अबाउट स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर लाता ही है, पीआर का वर्क है पूरा, मैनेज मतलब रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इवेंट सबको लगता है इवेंट सिर्फ इवेंट का काम है, इवेंट के पहले भी काम होता है, इवेंट के बाद भी काम होता है, और वो बहुत हार्ड होता है। ये है इवेंट के बाद भी, इवेंट के पहले भी। एंड आई एग्री दिस पॉइंट कि हम लोग, मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि ऑल द क्लब हेड्स एंड ऑल द कोर वी वर्कड इन वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोई किसी के, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर मैं क्रिएटिव का हूँ तो मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करूँगा। मैनेजमेंट तो ऐसी चीज़ है जो सबको करनी पड़ती है अल्टीमेटली, बट मैनेजमेंट क्लब हमारे पास है उसके लिए स्पेशली। So Freshers was again a big success and I loved it, and everyone, I am sure everyone loved the it. main motive behind organizing. The major thing was our seniors appreciated it कि यार भाई हमने नहीं कराया था, तुमने तो बड़ा इवेंट करा लिया। हाँ। We had our talks with our seniors. Exactly. The general secretary of last year, Parth sir, I am in contact with him right now. He gave me this message that in his tenure, he wanted to conduct a freshers of this scale, but It wasn't possible due to some circumstances, due to COVID and all. And also the major event in Fest was, it was planned and it was to be Everyone was organized. happy. We were getting only positive feedbacks after this. But there are many talks, like होता ही है कि अगर हम सबको नहीं खुश कर सकते obviously. There were many people asking for different artists, and there was also a comparison, like GU में तो यार रफ्तार आ गया, why we didn't get him in GSET. So why are we comparing GU and GCT? Both the colleges, both the universities of say colleges are under the name of Galgotia. Institution is the same. That is Because the main point. the chairman's rules are allowed कि if Galgotia's university students want to visit the freshers in college campus, they can, and if college campus students want to visit the freshers in GU campus, they can. So they would have attended both freshers. So those who are saying ये होना चाहिए था, ये आर्टिस्ट वहाँ आया, वो आर्टिस्ट वहाँ आया, they are lost. They would have attended both the event. तो उनके लिए दोनों था, but for the people I would like to tell कि there is comparing GU and GSET is not the thing, because ultimately we are one, and we are all under Galgotia's educational institutions, which is currently whose CEO is Mr. Dhruv Galgotia. And so yes, the freshers. Now I would like to ask you about upcoming events. So can you name anyone Coming soon. coming We're soon? done with the podcast, right? Time to wrap. No, actually not. So straight away I'll ask about Unifest. So Unifest, everyone is hyped up about Unifest कि Unifest कब होगा. Like कुछ बच्चे तो कॉलेज में एडमिशंस उनके फेस्ट देख कर लेते हैं. So definitely बहुत मेजर पॉइंट है. फेस्ट हुआ था, उसमें हार्डी संधू आया था, भाई इस बार का फेस्ट और अच्छा होगा, उसमें और बड़ा आर्टिस्ट हम लोग अपने टाइम पे जब आए थे, बड़ा artist हम लोग को मन की था औलाद बड़ा artist था, बड़ा artist था। बड़ा artist. हाँ भाई, हम लोग आए थे, फेस्ट हुआ था, फेस्ट में मंकी तौला गया था, वे भाई उसके एक साल पहले गुरु रंधावा आया था, भाई अपना फेस्ट होगा, बट सेड That we got the lockdown. हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों का पहला जो यूनिफेस्ट हम लोगों का पर्सनल था वो थर्ड ईयर में ही था. हाँ, First year, second we year, had our first हमारा Unifest experience in third year as a club head. Because of We- हाँ, सीधा हम लोग club We head came थे. as a member. In fact उसने भी ओजस स्पॉन्सरशिप में था फर्स्ट ईयर में, उसने वर्क किया था स्पॉन्सरशिप का. मैंने क्रिएटिव टीम के थ्रू मैगजीन बनाए थे मार्केटिंग के. फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन फुल थी, बट सैडली कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो इवेंट्स नहीं हो पाए, कॉलेज बंद, ये ऑनलाइन सारे सब इवेंट्स ऑनलाइन ही हो रहे थे एक तरह से. बट वी केम इन थर्ड ईयर जब, तो कॉलेज पूरा हाँ रेगुलर कंटिन्यूअस चला.
बट वी और सबसे अच्छी बात कि क्लब हेड्स होके हम लोग ने यूनिफेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जब हम लोग को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आइडिया नहीं था हुआ क्या। इनफैक्ट आवर कोर उन्होंने भी बस एज अ जो लास्ट ईयर की As a टेक्नोलॉजी member कोर उन्होंने फर्स्ट ईयर में एज अ मेंबर बस एंजॉय हाँ। किया था, जाके बट वी डिड एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। बैरिकेटिंग से बाहर से बैरिकेटिंग के अंदर का सफर जस्ट इन 2 फर्स्ट years. ईयर वो फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, That is a very long journey. Barricading से बैरिकेड के बाहर से बैरिकेड के अंदर आना, इनफैक्ट स्टेज तक आना। Even वो council 4 can साल make की a, I मेहनत है। think council can make a documentary बैरिकेटिंग से बाहर बैरिकेटिंग से अंदर तक का सफर. We'll approach city for that. Okay, we'll do for sure. We'll do. So I'll ask you, all of you, individually, what artists do you want? Not expecting or approaching. What artist do you want? If we Like go with if the artist, I will go with Star. like yes, Diljit. Vibe है। It can be like I'm not asking from India. It can be anyone. Like हाँ, anyone. यार देखो Like for me, पूछ रहे हो, it's the weekend. Like for me, but Star Boy। हाँ. The starting music, the beginning music, Star Boy हाँ. weekend। Star Boy. मेरा legit answer इधर कृष्णा के मेरा हो गया, अब आप लोग बताओ। हाँ, ये यूनिफेस्ट इसके ये लिए फ्रेशर्स के बात टाइम बोलता है भाई कृष्णा इसमें नहीं आया। क्या हो गया? वो अगर सर ने अगर ध्रुव सर ने बोला कि लेट्स गो विद डीजे आर्टिस्ट ये वो, तो ये बोला भाई कृष्णा आएगा यूनिफेस्ट में बुलाऊंगा, कृष्णा आया फ्रेशर्स में, भाई मेरा हो गया, मेरा कोर हो गया, मेरा काउंसिल हो गया। अच्छा I'll tell you guys a story, बहुत अच्छी स्टोरी है अगर लोगों को जानना है इनफैक्ट कि कैसे कृष्णा को अप्रोच किया था। भाई वो मैंने अभी तक कोर को भी नहीं बताया, यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। Okay. ओके दिसंबर का टाइम था, 16th डेट थी कृष्णा की। उस टाइम तक कृष्णा की कुछ बात नहीं हुई थी, वी वर इन टॉक्स ऑफ सम अदर सेलिब्रिटी, कोई और था। आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप, उस टाइम पे मैं बैठा हुआ था ऑफिस में एंड आई वाज कनेक्टेड ओवर कॉल एंड अब मैं फोन पे कनेक्टेड हूँ विद अक्षत भैया। अक्षत भैया इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जियो। So we guys were connected, we were discussing okay who to finalize for both GU and GCT ऐसे था, हम लोग म्यूचुअली चल रहा था and ध्रुव सर was also sitting there over phone। तो मैंने बात करी, मैंने बोला भैया बताइए अब क्या, सारे लॉक हो गए थे जितने मेजर आर्टिस्ट थे। 8 से दिसंबर था, आई रिमेंबर द डेट, और 16th की हम लोगों ने एक रफ डेट निकाल के रखी थी, कोई आर्टिस्ट बस 13th and 16th। हाँ, पीछे से ध्रुव सर himself suggested what about Krishna and I was like wait a minute, what did I listen over here? Did I miss someone? Yes. I was like, yes sir, definitely Krishna is a booming rapper right now, he is in trend। ये वो मैंने अपने साइड से पूरा मक्खन लगाया वहाँ पे and sir खुद interested थे, sir had a soft corner, तो sir ने बोला okay let's approach him and get the quotation। There was also a hype of like King, but I think he was doing some But, tours. the reason was we didn't had it। saving big things for the bigger event। Bigger events. किंग नहीं आ रहा। भाई 8th को हम लोगों ने बात की, 10th को भी क्लोज कृष्णा within 2 days, वहाँ पे तुरंत एकदम सडन वाला। उसके पहले हम लोग we were exploring Bollywood, DHL साइड अभी तक नहीं आया था कोई Bollywood, so we wanted to explore that side as well। Okay. So we have talked about the upcoming Unifest. Now I would like to talk about the past Unifest which you guys witnessed at the time when you were club heads. So आप लोग individually अपने अपने क्लब से कैसा एक्सपीरियंस था और First go to sponsor। अरे यार मैं वही पूछने वाला था, who will take this question? क्या Sponsorship club है भाई लास्ट ईयर का। yes yeah, on paper Unifest was conducted on Not on paper. 11th और 12th, रुक जाओ, April। Okay, हमारा कब से शुरू हुआ? हमारा दिसंबर से शुरू हुआ था। दिसंबर से शुरू हुआ था। हाँ भाई, मार्च में तो पता चला था होली वाले। नहीं वो बोल दिया गया था पहले। अच्छा हाँ, वैसे कि बड़ा इवेंट हो रहा है। बी रेडी, वो हाथ पैर मारना शुरू कर दो, वो चीज हम लोगों को हो जाता है। अभी से भाई मैं देख रहा हूँ, अब तो बहुत लेट हो गया खैर। बाकी ये है कि यूनिफेस्ट सारे क्लब्स के बिना भाई नहीं कंडक्ट हो पाएगा, दिस इज फॉर श्योर। इफ यू आर थिंकिंग कि इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लब्स इंपॉर्टेंट है यूनिफेस्ट के लिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज वी कंडक्ट 40+ इवेंट्स एवरी ईयर इन यूनिफेस्ट। हर क्लब के पास अपना इंडिविजुअल इवेंट होता ही होता है, और अगर एक भी इवेंट स्क्रैप होता है वी फील डिसहार्टेंड यार, वो चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि साल भर अगर एक्सपोजर हमारा हो गया था। हाँ, we had our IPL option। ऑन पर्पस नहीं होता है, ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है क्राउड टू क्राउड हर ईयर का। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग गुड। लास्ट टाइम कोविड वाला थोड़ा सीन था, लोग वर नॉट रेडी फॉर दिस बिग फेस्ट। अप्रैल में हुआ था एंड टिल फेब देयर वाज दिस कोविड लॉकडाउन ओनली, कहीं ना कहीं 144 लगा हुआ है, कुछ ना कुछ है। पीपल वर नॉट एबल टू इमेजिन दिस थिंग, इतना बड़ा फेस्ट हो जाएगा विद अ क्राउड ऑफ 20,000 पीपल। बट फिर हुआ, सारी चीजें अच्छे से स्मूथली हुई, कंडक्ट हो जाता है एंड में। बस ये कि यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन।
आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था एज अ स्पॉन्सरशिप क्लब हेड? भाई बहुत प्यारा और कोई एक फनी इंसिडेंट या कुछ इंटरेस्टिंग? मसाला मसाला। I'm going to tell you this thing. मसाला अरे बहुत प्यारा था। हुआ क्या था कि बैरिकेडिंग लगी हुई थी इन द सेमी सर्कल, तो कुछ हुआ था उस टाइम पे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू हो गया था मेजर। बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, सारे स्टॉल्स में लोग बैठे हुए हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा शाम हो गया, आई नहीं ढंग से। एक First day, second day? फर्स्ट डे उनमें से एक वेंडर थे, वो भाई आए, ही पेड काफी हैवी अमाउंट। अब वो वहां पे आए, मैं बैरिकेडिंग के बाहर निकला, मुझे पकड़ ले रहे हैं कब तक सब सेट होगा, सारी चीजें। मैंने बोला रुकिए सर, काम डाउन, वी आर वर्किंग ऑन इट। और हम लोग एक्चुअली वर्क कर रहे थे, वी आर नॉट डिलेइंग थिंग्स ऑन आवर एंड, सारी चीजें हमारी साइड से हो रही थी। लेकिन अब वो भाई पीछे पड़ के जल्दी करो अदरवाइज रीइंबर्स माय मनी, ये वो सारी चीजें। तो एक टाइम ऐसा था कि बाहर भीड़ होती जा रही है, मैं बैरिकेडिंग के अंदर, मैं बाहर जा रहा हूँ। ही वॉज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और मुझे उस कम्युनिटी से भाई दिल्ली से कॉल आ रहा है। आई वॉज नॉट पिकिंग अप माई फोन, रैंडम नंबर से दिल्ली से मुझे 6-7 कॉल आ रहे हैं कि जल्दी फोन उठाओ, ये वो। आई वॉज इग्नोरिंग दैट। Is there? तो भाई मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ बैरिकेडिंग में। अंदर आए, आई टोल्ड आर्यन भैया आप आर दे एवरीवन, दे वर लाइक जरूर हम भी बाहर नहीं जा सकते हैं। उस टाइम पे इवेंट के टाइम इतना ज्यादा केओस हो जाता है ना, बिकॉज यू आर द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द क्राउड इज सीइंग दैट ट्रिपल एक्सेस ऑन यू, दे नो ओके यू आर द वन टू बी अप्रोच्ड। यही है वो बंदा, चाहिए इन्हीं को पकड़ो, दैट इज द मेन पॉइंट। कुछ काम है, इनको पकड़ो। तो भाई यही हुआ अल्टीमेटली। मैं जा रहा हूँ, 17-18 कॉल उन्हीं की पड़े हुए इधर उधर। मैं कैंपस में कहीं नहीं घूम पा रहा हूँ हमारे डर के, मैं अपने कैंपस के अंदर नहीं घूम पा रहा हूँ, मैं बैरिकेडिंग के अंदर बैठा हूँ। फिर मैंने अल्टीमेटली वी हैड टू रीइंबर्स द अमाउंट एंड दैट गाय वेंट बैक। बट ठीक है, वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। इट वाज मैं पागल हो गया ना भाई। स्केरी आई वुड से। यस, लाइफ थ्रेटनिंग फिटेज। अर्पित भैया, We are good. Calls नहीं आते, धमकी वाले। टाइम पे बस काम चाहिए। वो भी धमकी वाले कॉल। ना, ऐसा कोई नहीं आया था, टाइम पे दे दिया था। कोलैब करना था ना तुम्हें। ओह दैट वेलकम टू दैट। अर्पित सर आपका आईपीएल ऑप्शन। IPL ऑप्शन, वो आईपीएल ऑप्शन एक्चुअल में CTXPR था। CTXPR था वो। अच्छा, तुमने आइडिया मेरा था। मैंने हाँ, लेके फेंक दिया एक्चुअल था। में इसने दिव्यांशु भैया को- मैंने पूरा लेआउट बनाया, मैंने फेंक दिया था। मैंने बोला ठीक है सर ये इवेंट करा सकते हैं। अब ये इस आईपीएल ऑप्शन हम लोग को लगा इंटरेस्टिंग है। हम नमन रुद्राक्ष से उसमें प्रेजेंट हेड्स और ये प्रांशु प्रतीक और ऐसे डिस्कस किया गया भाई इवेंट सही है। वैसे हम लोग को इवेंट रहता है, जैसे एक्चुअल में सीटी एंड पीआर सबसे खाली आदमी है ड्यूरिंग द रिफ्रेश, During At the the time defense. of- ड्यूरिंग द At the time of defense. ड्यूरिंग द रिफ्रेश। वो 2 डेज मेजर काम रहता नहीं है, जो काम रहता है जूनियर्स देख लेते हैं, क्लब हेड्स का कोई मेजर रोल रहता है। अर्पित सर एंड आरजे सर, आप लोगों का एज अ क्लब हेड कैसा एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर 2022? लाइक अदर देन इवेंट्स आल्सो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए कि एक क्लब हेड कैसा एक्सपीरियंस करता अरे देखो 2 दिन तो बहुत मजा आया। लेकिन वही कहूंगा ना, बैक एंड पे जो काम किया है ना, सुबह 6 बजे कॉल आ रही है, अर्पित लिस्ट नहीं आई, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट भेजो बना के। वो वाली ऐप स्टूक्रेड वाली की भाई एंट्री पता नहीं किस किस की लिस्ट, मुझे अब याद भी नहीं है, मैंने इतनी लिस्ट बनाई है। मतलब legit मेरी आंख खुल रही है, कॉल आ रहा है, लिस्ट अप्रूव नहीं हुई। अप्रूव कौन कराएगा जाके? जा रहा हूँ डायरेक्टर ऑफिस, डायरेक्टर सर कह रहे हैं किस बात की अप्रूव करूँ मैं इसको। फिर कोर से बात कर रहे हैं कि सर अप्रूव नहीं हो रही है, आप आइए, कोर आ रही है। बहुत था भाई, Chaos. बहुत बहुत chaos था। एक बताता हूँ, बाद भैया ने बोला कि एक लिस्ट बनाओ 200 बच्चों की। उसमें भाई इनसाइड टॉक सही है। सारी पूरी काउंसिल, प्रीवियस काउंसिल हेड्स जितने थे वो सब, और क्लब मेंबर्स, क्लब हेड्स की सबकी एक लिस्ट डेटा बनाओ जो जाएगा। बना जहाँ जाएगा ये नहीं बता सकते। कहाँ गया ये नहीं पता, वो जाएगा, ठीक है बना देंगे। वो डेटा बना दिया है, ठीक है। 2 घंटे बाद आ रहा है, अर्पित सारा हटा दो, दूसरी लिस्ट बनाओ, मेंबर्स हटा देना। ठीक है, हटा दिए। अगले दिन पता चल रहा है कुछ नहीं हुआ उस लिस्ट का। कुछ होना था, कुछ होना था बट But कुछ हुआ नहीं। अपना काम हो गया तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया। ये चीज होती है, पता है ऑफिशियल वर्क जितने होते हैं, क्लब स्पेसिफिक वर्क जब तक क्लब हेड हो आपको पता चलता है। बट जैसे ही कोर में आते हो, द मोमेंट यू एंटर कोर, तब आपको पता चलता है बहुत ज्यादा काम जो है खाली क्लब हेड से ज्यादा होता है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, द ऑफिशियल परमिशन, Because we are answerable not only to मतलब our core members, क्योंकि एक बंदा दूसरा काम संभाल रहा होता है, दूसरा काम कर रहा है, तो एक तरह से कम्युनिकेशन गैप भी कभी-कभी हो जाती है, वो कम्युनिकेशन रखना होता है। सेकंड, वी आर answerable to chairman and the present director of the college. तो हमें सारी रिपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंटेशन सब बताना पड़ता है, सर ऐसे हुआ, ये हुआ, मतलब एक डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। और वो इवेंट के बाद का काम है,
जिसमें सब एंजॉय करके भाई मजे हो गए, अपना काम स्टार्ट हो गया। भाई मेरा तो इवेंट के बाद 1 महीना इसी में गया है। मैंने डेली बैठ के रिपोर्ट्स बनाई है। एक्सेल शीट एक्सेल शीट तो फिर भी हो जाती है। बिल सबमिट करने होते हैं। PR heads are very good at Excel. अरे पूरे मैंने shortcuts एक पूरा एक्सेल 1 महीने में कंप्लीट ऐसा हो गया था ना कि कुछ भी करवा लो भाई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखो कुछ ज्यादा खास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। वो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कहेंगे तो डिजाइनिंग एंड एडिटिंग में ही था, बिकॉज ये इनिफेस्ट बहुत बड़ा इवेंट है भाई। कॉलेज के स्टूडेंट और जीयू के स्टूडेंट सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अराउंड 20,000 प्लस क्राउड आया है। अब तुम उसका डिजाइनिंग टीम के हेड हो, जो भी डिजाइन, पहली बात तो डिजाइन टीम जो है वो जियो और जीसीटी के दोनों साथ वर्क करते हैं। तो वी वर अराउंड 6 क्लब हेड्स एंड वी हैड आवर कोऑर्डिनेटर्स एंड मेंबर्स। बट इंपॉर्टेंट काम अपने 6 पे आता है। बट इंपॉर्टेंट काम अपने 6 पे आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को वर्क बताना और कोर मेंबर्स ऊपर से अप्रूवल लेना कि सर ये फाइनल है, ये है, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। बट उसमें लर्न करना कि अच्छा ये और बेटर ऐसे हो सकता था। वीडियोस तुमने भी की हैं, मैंने भी की हैं, वी हैड आवर मेंबर जो भी की हैं सारे। तो बहुत काम बहुत होता है। एक्सपीरियंस जो होता है वो खुद की पर्सनल लर्निंग ही होती है। पर्सनल ग्रोथ वही बेस्ट है, इन्वेस्ट में करो, बाकी एंजॉय करो। एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन जो तुमने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि हायरार्की क्या है ना, पूरे काउंसिल की, मैंने तो उस टाइम पे तुम्हें एकदम बुकिश टाइप का बता दिया था। बट सिंस द पॉडकास्ट अभी थोड़ी ओपन अप हो गई है, जो एक बहुत बेसिक डायमेंशन तुमको समझाऊंगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब तक तुम मेंबर हो, है ना, यू आर लर्निंग थ्रू लाइक ऑब्जर्विंग योर सीनियर्स और ऑब्जर्विंग योर पीयर्स। जैसे तुम कोऑर्डिनेटर बनते हो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। यू स्टार्ट लुकिंग टू द इनर साइड ऑफ अ क्लब्स वर्किंग। क्लब हेड बने, तुमने बहुत अंदर की बातें और पता चली, तुमने खुद पर्सनली सीखी बहुत सारी बातें जैसे क्लब हेड बन। बट द मोमेंट यू रीच कोर इज समथिंग। देखो भाई वो एपेक्स पे क्यों बैठे हुए हैं वो 7 लोग, है ना। इट इज नॉट अबाउट ब्रैगिंग, इट इज नॉट अबाउट फ्लेक्सिंग। बस खाली सिंपली ये बताऊंगा कि भाई वो 7 लोग वहां पे बैठे हैं क्योंकि वहां का काम सबसे ज्यादा टफ है। लोग अगर ये सोचते हैं कि तुमने सारी चीजें कर ली उसके बाद में कोर में बैठे हो तो मजे नहीं है भाई। एक पॉइंट ये आता है, सी कोर में अलग अलग क्लब के अलग अलग हेड्स जो भी होते हैं वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट के सारे मेंबर्स सारे क्लब हेड्स कोर में, या मतलब कोई भी ऐसे स्पेशल क्लब ले लो या नाम लो, ईच क्लब का एक मेंबर वहां पे होता है। बट अब कोर में बैठा है तो जो बाकी क्लब हेड जो जूनियर होते हैं वो ये एक फेवर बात रखते हैं कि मे बी इफ देखो हम अगर सिटी हेड थे तो लोग कहेंगे कि अच्छा हम सिटी को फेवर कर रहे हैं, बट वो मेरा काम नहीं है। बीइंग अ कोर मेंबर मुझे सारे 19 के 19 क्लब देखते हैं। वी हैव 19 क्लब्स अंडर आवर काउंसिल, तो मुझे 19 क्लब्स देखने हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं सिटी को फेवर करूं। इफ स्पॉन्सरशिप है तो मुझे स्पॉन्सरशिप की भी दिक्कत सॉल्व करनी है, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट की भी दिक्कत सॉल्व करनी है। तो जिन क्लब हेड्स या फर्स्ट ईयर मेंबर्स और सेकंड मेंबर्स को ये रहता है ना कि अरे ओजस में तो स्पॉन्सरशिप क्लब हेड थे तो स्पॉन्सरशिप देखेंगे, पीआर क्लब हेड थे तो पीआर देखेंगे, ऐसा नहीं है। इस हिसाब से तो फिर कुछ क्लब्स के मेंबर ही नहीं आ पाए तो क्या वो क्लब फंक्शन करना बंद कर देगा? वही चीज है ना, वो 7 मेंबर्स कोर में आओगे तुम्हें सीधा अपने आप को डाइवर्स कर लेना। There is a transition between जब आप 50 लोगों को There is a handle कर रहे हो huge transition. and आप फिर 1000 लोगों को भी देखो तुम एक और क्लब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैशूर क्लब हेड तुम्हारे अंडर सिटी के मेंबर्स कोऑर्डिनेटर्स होंगे 8-10 और मेंबर्स होंगे जो भी प्रेजेंट फर्स्ट ईयर के मेंबर्स हैं अराउंड 50। बट बीइंग अ कोर मेंबर तुम्हारे अंडर तुम सिर्फ एक क्लब हेड हो, अपने अंडर 45 क्लब हेड्स हैं, फिर उनके अंदर कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर उनके अंदर मेंबर्स हैं, और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मेंबर्स नहीं है बट दे आर ट्राइंग, दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन क्लब्स एंड कोऑर्डिनेट एंड हैव फन जो भी कहो। तो अपने अंडर अपने पास बहुत प्रेशर है सारे बच्चों को हैंडल करना। ऐसा नहीं कि फेवर करना एक ही क्लब को। देयर इज अ स्टाफ जो जिसके लिए आप रिस्पांसिबल होते हो हर चीज के लिए, मतलब आप आंसरेबल We are directly answerable to the college management. We have to look ahead into the face of this. Because people know us, because we are sitting on that position कि अगर कोई दिक्कत है तो हम आंसरेबल हैं उनको, वो तुमसे भी नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हमारे थ्रू तुम वो आते हैं, उनकी कोई बात आती है तो हमारे थ्रू आपके पास आती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कोई भी, तो वी आर आंसरेबल टू हिम, चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात हो। So like as a club head me I had a very good experience and very learning experience and मैं और सीखना चाहता हूँ and with me all the club heads आप as a senior and as a core member our mentors आप लोगों का क्या एडवाइस रहेगा to the fellow club heads and also the club members? Firstly the club heads. See, like club heads जो है प्रेजेंट क्लब हेड्स वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने वर्क किया और पर्सनल ग्रोथ भी की, क्लब का वर्क भी किया और काउंसिल का भी अपग्रेडेशन हुआ उनके वर्क से, तो दे आर प्रेजेंट क्लब हेड। तो उन्हें इतना तो पता है कि वो क्लब हेड क्यों है, क्योंकि उन्होंने काम किया, तो वो खुद पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं, क्लब को भी हेल्प कर रहे हैं और काउंसिल को भी हेल्प कर रहे हैं।
तो उन्हें इस एडवाइस की नीड नहीं है कि अब उन्हें और क्या चाहिए, अब उन्हें अपने पर्सनल ग्रोथ देखनी है। मेंबर्स को कह सकते हैं कि मेंबर्स यू आर, मतलब आप पहले अभी पार्ट बनो, तो नाउ यू हैव टू सी, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो। सीनियर कोऑर्डिनेटर्स, सेकंड ईयर मेंबर्स, फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर क्या आता है ना, वो अपने सीनियर्स को तो मानता है जो थर्ड और फोर्थ ईयर होते हैं, बट सेकंड ईयर को समझता है ये तो अभी सेकंड ईयर क्यों है, मतलब हमसे एक सीनियर है, बट दे आर आल्सो योर सीनियर्स, वो उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है, तुम अभी नूब हो। जो फर्स्ट ईयर है वो भी नूब है, तो क्लियर। सेकंड ईयर के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इन्फेस्ट देखा है, उन्होंने फ्रेशर्स देखा है, उन्होंने वर्क किया है, तो उन्हें पता है कि काम कैसे होता है। हाँ, उस लेवल पे नहीं पता है जो हमें लेवल पे पता है या क्लब हेड्स को पता है, बट सेकंड ईयर मेंबर्स आर आल्सो सम रिस्पेक्टेड मेंबर्स इन द क्लब, इन अंडर द काउंसिल। तो फर्स्ट ईयर को उन्हें भी ओबे करना है और उनसे भी लर्न करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट क्लब हेड से बात करो या कोर मेंबर करो, एक हायरार्की है। इफ कोऑर्डिनेटर्स नहीं हेल्प कर पा रहे तो क्लब हेड हेल्प करेगा, क्लब हेड नहीं हेल्प कर पाए तो कोर मेंबर्स आते हैं। Even if you are skilled, आपके पास experience नहीं है तो you have to learn. यू हैव You have to learn. एक पॉइंट था जब फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे, तो मुझे तो कुछ नहीं आता था, बट एक था अपना फ्रेंड, उसको बहुत कुछ आता था उस समय। ऐसा नहीं था कि उसने ये नहीं किया कि भाई मुझे तो आता है मैं क्यों ना करूं, बट उसने भी एक्सप्लोर किया। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने स्ट्रिक्ट रहा कि अरे मुझे इतना तो आता ही है, अब ये थोड़ी है, तो उसने भी अलग अलग वेरियस डोमेन्स में एक्सप्लोर किया, तो ही आल्सो लर्न एंड आई आल्सो लर्न। तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर ये ना सोचो कि अरे ये तो मेरे साथ का, इसको तो ये आता है, हम क्यों इसे सीखें। भाई जितना सीखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, साफ सीधी बात है। स्टूडेंट काउंसिल इज ऑल ये अबाउट चीज है ग्रो। कि अगर फर्स्ट ईयर काम कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से तुम लोग काम कर रहे हो, काम गेट्स योर डिजर्व्ड रिकॉग्निशन, वो तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन पता है बहुत बार ऐसा होता है, पर्सनली मैंने ये चीज देखी है, लोग काम कर रहे हैं, वो चीज बहुत जल्दी प्राइड आ जाती है उन लोगों के अंदर कि भाई मैंने काम कर लिया, मैं बनूंगा क्लब हेड, वो चीज वो लेके अंदर बैठ जाते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू कंसीडर। मतलब आपने अभी काम करना शुरू किया है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपने अभी से बना लिया कि यार मैं तो बन जाऊंगा ये वो, देन देयर इज नंबर ऑफ पॉलिटिक्स, ये वो इधर उधर बहुत सारी चीजें होती हैं। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी फेज। तो ऐसा नहीं कि तुम खाली काम करते रहो तुम क्लब हेड बन जाओगे, बहुत रेयर केसेस में होता Be है, an asset. रेयर केसेस में होता है। यू हैव टू बिल्ड योर पाथ, हमेशा बनाना पड़ता है पाथ, ऐसे No one is gonna do परोस that के for नहीं you. थाली पे दे दी जाएंगी चीजें। यू हैव काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात मे है। बी बहुत यू विल हैव सम फ्रेंड्स जो तुम्हें वो पाथ बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, लाइक वी आर, बट तुम्हें ही वो उस पाथ पे वॉक करना है। पाथ तुम्हें अपने हिसाब अपने हिसाब से बनानी है, बिल्ड अपने हिसाब करना से पड़ेगा। चलना काम करो, बहुत अच्छी बात है, रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। एंड और वो कॉलेज लेवल पे मिलता हमेशा है। अपने क्रेडिट के लिए क्लेम करो, जहां तुमने काम किया क्रेडिट के लिए क्लेम करो, कभी वहां पे ना डरो। दैट इज द मेन पॉइंट। लेकिन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, तुम काम करके बस अपना रख दे रहे हो साइड में, उसका रिस्पेक्ट करो, एंड में आपको क्लब हेड नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर आप अपने क्लब हेड को नहीं बता पा रहे हो, कम्युनिकेट कर तुम पा अपने रहे हो, आप को रिप्रेजेंट आपको नहीं कर क्लब पा हेड रहे बना हो। दिया, आप अपने वो जूनियर्स को क्या बताओगे? लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। So that was very. This podcast was very inspiring and. एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, जैसे पीआर क्लब है, मैं उसका एक पार्ट था, तो लोगों को लगता था ना कि पीआर डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। बस पीआर का नाम है पब्लिक रिलेशन। लोग क्या सोचते हैं कि अरे पीआर क्या करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, एक्सेल शीट पर डेटा अपलोड करता है, यही करता है। नहीं भाई, पब्लिक रिलेशन है, लोगों से कांटेक्ट भी करता है। लोग आते ही नहीं कांटेक्ट करने क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू ना उनको ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि पीआर क्लब तुम्हारे पर्सनल इश्यूज के लिए भी है। यहाँ पे तुम आओ, अपनी इश्यूज बताओ पीआर को कि हमें ये दिक्कत है, हम काउंसिल को इस तरह से अप्रोच करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास कोई इवेंट आइडिया, तुम आओ पीआर से बात करो, वो हमें बताएंगे। PR is the like Extension Public Extension relation, extension to core bridge between students and the core members, council, student council. student council. This वो is जो PR. communication gap है वो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो पीआर करेगा। So it was very nice talking to all of you, and I hope everyone will get inspired to join a council, and also not even in council, to do well in their academics and to develop their overall personality. See, एक चीज है, कुछ लोग लिमिटेड रहते हैं कॉलेज तक, जैसे कि कुछ लोग क्या है भाई, क्लब्स में वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, बट कॉलेज के बाद इनका क्या है? पढ़ने आए हैं। पढ़ने आए तो कॉलेज के बाद तो प्लेसमेंट लेके जाना है सबको, तो क्लब से में क्या देगा? क्लब कहाँ वर्क जाओगे? करके क्लब क्या देगा भाई? वो लगता है बच्चों को फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बट एज अ क्लब हेड तुम्हें पता होगा कि इफ अगर तुम सिटी के हेड हो, क्रिएटिव टीम, तो वो ग्राफिक डिजाइन और जो भी हम लोग करते हैं सिटी के अंदर, वो वही ट्रेंड है। दैट इज ओनली द ट्रेंड। इंजीनियर तो सब बन रहे हैं, प्लेसमेंट तो सब ले रहे हैं। अगर मैं अपनी स्पॉन्सरशिप लाना, एक एजेंसी का स्पॉन्सर बनना, दैट इज द ट्रेंड, क्योंकि भाई वही चल रहा है। इवेंट होना, ये पॉपुलेशन क्राउड, ये मैनेजमेंट। तो हाँ ठीक है, एकेडमिक्स इज गुड एट देयर लेवल, बट
क्लब से भी लर्न कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज तक लिमिटेड है, कॉलेज के बाद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव मोर नंबर ऑफ स्किल्स इन योर लाइफ। इतना ज्यादा पढ़ाई है ठीक है, एकेडमिक्स इज वेरी गुड, होना बहुत हमेशा प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए एकेडमिक्स, लेकिन अगर उसको बैक करने के लिए तुम्हारे पास में और 6-7 स्किल्स हैं, एवरीवन विल प्रेफर यू। एक पॉइंट बस कि फर्स्ट ईयर क्या होता है ना, वो रेज्यूमे मैच करता है, कंपेयर करता है। अब तुम दो बंदे का रेज्यूमे ले लो, इफ एग्जांपल एक बंदा है जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट टॉकिंग अबाउट CSIT इंजीनियर, पाइथन C++ सब चीज आती है, और दूसरे बंदे को भी आती है, बट कंपनी अब हायर करने आई है। लेकिन दूसरे बंदे को एडोब स्किल्स आती हैं, फोटोशॉप स्किल्स आती हैं, उसको कैमरा हैंडलिंग आती है, उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स है, उसके पास लीडरशिप स्किल्स है, तो फिर द HR विल हायर दैट पर्सन कि अच्छा ये बंदा, इसके पास लीडरशिप स्किल्स है, ये एक टीम लीड कर सकता है, ये टीम मैनेज कर सकता है। इफ नीड पड़ा, अगर मेरे पास मेरा डिजाइनर नहीं अवेलेबल है, एवरी कंपनी हैज अ डिजाइनर और कैमरा हैंडलर और मैनेजमेंट टीम, बट इफ दे आर नॉट अवेलेबल, दिस पर्सन हैंडल दैट। तो मुझे ये बंदा अगर कोडिंग का काम तो करके दे रहा है, दूसरा मुझे ये स्किल्स दे रहा है जो मेरे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो फिर उस बंदे को क्यों नहीं हायर करेंगे। So this is all about कि अगर कंपनी आपको 50,000 महीने के पे कर रही है, तो they are earning 50 lakhs from this, क्योंकि तो इसीलिए आप जितना बड़ा एसेट हो उनके लिए, you are getting बिकम एन एसेट। become an asset. That is the only learning I had with this podcast. Okay, and I think everyone will also learn and go through this. We will also be having, I hope we will also be having individual podcasts with all of you. To know More inside talk. More inside talk. So this was a very good talk. And Yeah, it's a thank you very very good much. initiative from the city, because students somehow feel, the freshly admitted students somehow feel the same. डोंट से सिटी, से क्रिएटिव टीम, सिटी की सिटी। क्रिएटिव टीम होती है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फर्स्ट ईयर आए, उन लोगों ने देखा ठीक है ये कोर मेंबर्स हैं, क्लब हेड्स हैं, बट डर लगता है अप्रोच करने में, यार क्या बात करें क्या करें। नाउ दे नो द इनसाइट्स ऑफ हाउ द काउंसिल वर्क्स, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस है। और यार डरो मत कर यार, सकते हो हम भाई, लोग approach सीनियर कर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, वही, तुम अगर वही। अप्रोच करोगे। आराम से डरना नहीं है, approach हमने भी करो। तो अप्रोच किया यार अपने सीनियर्स को जब कुछ पढ़ा, ऐसा थोड़ी डर के भाग गए। Okay, so lastly I would like to say Jai CT. I won't say that. Jai Council, Jai CT, and जय टू एवरीवन।